Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I am here today with a very much informative and very much comprehensive detailed video on the uses of fermenter, working of fermenter. So, चलें इसकी तरफ देखते हैं what the fermenters are and how they can be used, what kind of products can be produced in a fermenter. Okay. So basically fermenter that can be used to produce three kind of things which are in your syllabus. Number one is the antibiotic, and the particular antibiotic in your syllabus is the penicillin. And it can also be used to produce the hormones such as insulin. And sometimes they may ask that name another hormone which can be used, which can be produced in the fermenter, and that is the growth hormone. And the important thing is single cell protein. I will be discussing all the important point, working everything, each and everything in this video. So please stay with me and watch the full video so that you can understand the working of fermenter and the production of penicillin, insulin, and genetically modification of E. coli for production of insulin and the single cell protein. So basically that is, you can see that is a fermenter. That is the structure of it. And you can see that it is having a large number of pipes in it, and there are too much material labeled over it. I will be discussing step by step. That fermenter is used on the commercial scale for the production of antibiotics, single cell proteins, insulin, that is a hormone used to treat the diabetes mellitus, growth hormone, which is used to boost up the growth or the height of short persons. Okay. Now coming towards the labeled detailed structure of the fermenter. So again, that is the diagram you can see. First of all, what it is happened that before the starting of the working of a fermenter, sterile air or the steam is being introduced in it. That is going to sterile the fermenter from the inside. And the big nutrients which are being added up, the yellow content which you can see is the nutrient that is also being sterilized before adding your required strains of bacteria, required strains of fungus. आपने सारा मटेरियल डालने से पहले फंगस इसको फर्मेंटर को अच्छी तरह से स्टीराइल करना है. देन व्हाट विल बी हैपनिंग, यहाँ पर आपने ये सॉल्यूशन लेना है. सॉल्यूशन क्या यूजुअली हम यूज करते हैं, दैट इज द ब्रॉथ और द एगर, एंड दैट इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है जी. देन आपने यहाँ पर ये जो आपको एक प्लेट नजर आ रही है, डिस्क विद द होल्स, दैट इज यूज टू सप्लाई द sterile air. And definitely whenever the sterile air is being introduced from here, that is disc is having the holes in it, so the air bubble will be formed. And why I am talking about the sterile, so that sterile air हमने इसलिए यूज करनी है ताकि हमारे जो यहाँ पे जो हम प्रोसेस रन कर रहे हैं वहां पर कहीं पे कंटेमिनेशन ना हो जाए. To avoid contamination, we are using the sterile air. अच्छा, यहाँ पर अब आपने एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है वो आपने ये समझना है कि इस फर्मेंटर दैट इज अ स्टेनलेस स्टील वेसल. ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी मैं आगे भी डिस्कस करूंगी. आपने इस स्टेनलेस स्टील वेसल को, फर्मेंटर को स्टार्ट करने से पहले, अपना प्रोसेस फर्मेंटेशन का स्टार्ट करने से पहले इसको अच्छी तरह से स्टीराइल करना है ताकि इसके अंदर अगर बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो किल हो जाए. आफ्टर दैट आपने इसके अंदर सोल्यूशन डालना है. ठीक है, सोल्यूशन एड अप किया. सोल्यूशन में क्या है, ब्रॉथ और एगर है. दीज आर द न्यूट्रिएंट मीडियम जिनमें आपके पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फंजाई ग्रो करेंगे. ठीक है, आपने क्या करना है, पहले फर्मेंटर स्टीराइल किया, उसके बाद आपने सॉल्यूशन डाला एगर और ब्रॉथ, फिर आपने उसको भी स्टीराइल करना है. उस सॉल्यूशन को स्टीराइल क्यों करना है, सो दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन दैट इज गोइंग टू बी किल्ड. अगर हमने वो स्टीराइल नहीं किया तो बेटा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर होगा, वो भी ग्रो करेगा, वो भी अपना वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो हमारा जो रिजल्ट है वो
ठीक नहीं आएगा। हमारा जो हम चीज प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं फर्मेंटर में, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, या हम इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसमें भी कंटेमिनेशन होगी और प्योर नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब एयर क्यों चाहिए होगी? क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस दे आर गोइंग टू रेस्पायर एरोबिकली। ठीक है जी। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, दीज आर द रोटेटर इम्पेलर्स और पैडल्स हैं। दीज आर गोइंग टू मिक्स द दिस फूड विद दैट ऑफ द बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया के साथ इसको हमने मिक्सअप करना है फूड के साथ, और प्लस जो एयर डाल रहे हैं रोटेटर इम्पेलर्स, इसको फूड को, बैक्टीरिया को और एयर को आपस में होमोजेनाइज कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है। अब डेफिनेटली बैक्टीरियाज आर रेस्पायरिंग ओवर हियर, तो रेस्पायरेशन के रिजल्ट में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक आउटलेट भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, हेयर यू कैन पीपल सी द पीएच कंट्रोलर, पीएच डिटेक्टर, पीएच मॉनिटर है हमारे पास। पीएच मॉनिटर का क्या फंक्शन है बेटा? यू ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज द एसिडिक गैस। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में वाटर भी है अल्टीमेटली, सो दैट कैन फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। जब एसिड बन जाएगा, अगर यहाँ पे आउटलेट नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर नहीं करवाएंगे, एग्जिट नहीं करवाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड विद द वाटर दैट विल बी रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग द कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड विल बी कॉजिंग द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया को किल कर देगा, डेड कर देगा इनको, बिकॉज यहाँ पे एसिडिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास पीएच सेंसर है, अगर किसी तरह से पीएच डिक्रीज हो गई है तो आपने यहाँ पे आपके पास एसिड बेस बैलेंस मौजूद होगा। जो रिक्वायरमेंट है, अगर एसिड ज्यादा हो गया तो आप बेस शामिल कर देंगे, बेस ज्यादा हो गया तो आप एसिड शामिल कर देंगे उसके अंदर। ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पर बेस, आपने याद रखना है कि आपके पास CO2 का आउटलेट होगा। ओके, आफ्टर दैट आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक कूलिंग जैकेट है। कूलिंग जैकेट क्या है बेटा? जब बैक्टीरिया एरोबिकली रेस्पायर करेंगे तो रेस्पायरेशन के रिजल्ट में हीट तो प्रोड्यूस होगी। ठीक है। सो दैट हीट इज गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल। जब वेसल के अंदर टेम्परेचर चेंज होगा तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया आर गोइंग टू रिस्पायर और वर्क एट अ प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके लिए चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? हमने यहाँ पे यूज करना है कूल वाटर इनलेट। कूलिंग जैकेट से हमने क्या पास करवाना है? वाटर इनलेट। वो बेस से जाएगा और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, वो स्पाइरल फॉर्म में इस वेसल के सराउंडिंग में रोटेट करता चला जाएगा, और टॉप से आपने उसको वाटर को आउट कर लेना। दैट वाटर विल बी टेकिंग द हीट अवे फ्रॉम द वेसल, तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रह जाएगा। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे ये आपके पास व्यूइंग पॉइंट है, आपने यहाँ से क्या देखते रहना है कि आपका सारा सिस्टम सही चल रहा है, कहीं पे स्टक तो नहीं हो गया, वट एवर दैट इज। और फिर क्या होगा? जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में रनिंग हो जाएगी, हमारे पास प्रॉपर फर्मेंटर का जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे, हमने एंड में क्या करना है? हमने बैक्टीरिया को, और जो अगर हम इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, या अगर आप यहाँ पर पेनिसिलिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, आपने ग्रोथ हार्मोन बनाया आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है। अब उसकी एक्सट्रैक्शन के बाद आपने प्योरिफिकेशन कर लेनी है बेटा। रिमेंबर, यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ आपको डिटेल प्रोसेस मेंशन किया है इंसुलिन का। ठीक है। आप यहाँ पर इंसुलिन की जगह पर रिप्लेस कर सकते हो इसको विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं, फर्मेंटर फॉर द पेनिसिलिन। आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो विद दैट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। और साथ में आप इसको फिर हम सिंगल सेल प्रोटीन भी इसमें डाल सकते हैं। वर्किंग आपके पास फर्मेंटर, जनरल फर्मेंटर की, दैट विल रिमेन सेम। ओके, नेक्स्ट जी, अब हम देखते हैं ये लार्ज स्केल फर्मेंटर में। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इन कीवर्ड्स को जो है एक दफा गो थ्रू कर सकें, पढ़ सकें। ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको वर्बली डिस्कस की हैं आपके साथ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब फर्मेंटर में हमने इसकी पेनिसिलिन प्रोड्यूस करवानी है। कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्मेंटर की वर्किंग आपको समझ आ गई होगी, कुछ खास रिक्वायरमेंट है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इतने लीटर्स आपके पास 100,000 से 150,000 लीटर्स इसकी कैपेसिटी होती है, इतने बड़े लार्ज स्केल पे होते हैं। ठीक है। अब एंटीबायोटिक जब आपने पेनिसिलिन प्रोड्यूस करवानी है तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि इसके लिए आपको यहां पर चाहिए फंगस फ्यूसेरियम, जबकि आपने अगर प्रोड्यूस करवाना है इंसुलिन तो आपको चाहिए वहां पे बैक्टीरिया। मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी, सारी डिटेल में डिस्कस करूंगी।
आप इन स्क्रीनशॉट का, जब ये मेरी स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अच्छा जी, एंटीबायोटिक फर्मेंटर में आपने जब प्रोड्यूस करवानी है पेनिसिलिन, तो उसके लिए आपको चाहिए फंगस पेनिसिलियम। जो कल्चर मीडियम होता है, कल्चर मीडियम वो मीडियम होता है जो मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हमारे पास हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। अब उस कल्चर मीडियम के पास अच्छी अमाउंट में ग्लूकोज होगा ताकि वो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करे, उसके पास नाइट्रोजन की सोर्स होगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, नाइट्रेट्स या अमोनियम कंपाउंड, ताकि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा सके, सेल ग्रो कर सके। मिनरल सॉल्ट्स चाहिए फॉर देयर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अब जो एंटीबायोटिक के लिए, पेनिसिलिन के लिए जो कंडीशन आपने मेंटेन रखनी है, जो पीएच इसकी ऑप्टिमम है दैट इज 5 to 6, टेम्परेचर 26, और एयरेशन आपने देनी है, यानी आपने उसको स्टीराइल एयर देनी है बिकॉज फंगस पेनिसिलियम एरोबिकली रेस्पायर करेगी और अपना प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं एक मजे की बात बताऊं दैट पेनिसिलिन इज द वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द फंगस। तो जैसे जैसे फंगस की ग्रोथ होगी और उसके सेल का जो ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगा, मींस के सफिशिएंट अमाउंट में ग्रो कर चुके होंगे, तब उसकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होगी। ठीक है, पहले जब आपके पास ग्रो कर रही है उस टाइम पे इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं आएगी। जब उसका रेट रेट जो है ना, रेट ऑफ ग्रोथ वो स्लो होगा, मींस मैक्सिमम वो ग्रो कर चुकी है, उसके बाद उसका वेस्ट प्रोडक्ट पेनिसिलिन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे बच्चे अक्सर मिसकंसेप्शन आपको मैं बता दूं, पेनिसिलियम is a fungus that produces penicillin, and that is an antibiotic which is used to treat the bacterial diseases। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। जब प्रोसेस आपका सारा रन हो चुका होता है तो आपने क्या करना है, पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करवाना है और उसको आपने क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू अपने पास एक्सट्रैक्ट करके, रिमूव करके अपने पास स्टोर कर लेना है, या आपने जिस तरह से पैकिंग करनी है, वट एवर दैट इज। ओके, इसकी प्रोडक्शन यूजुअली होती है बैच प्रोडक्शन। आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बैच प्रोडक्शन और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन का कंपैरिजन भी बताने वाली हूं। सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी, देखते रहिएगा, फुल वीडियो देखनी है आपने। ठीक है, ये मैंने एक बुक से लिया है पूरा प्रोसेस के किस तरह से होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सारा वही कुछ है जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हमने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पार्गर, स्टीराइल एयर क्यों यूज करते हैं, कूलिंग जैकेट का क्या फंक्शन है, प्लस इसमें आपको पता होगा कि हमारे पास जो ये है, इसमें पीएच मॉनिटर क्या करते हैं, और सब सब चीजों की डिटेल इसके अंदर एक पैराग्राफ की फॉर्म में दी गई है, बट आप उससे पहले वो एक स्क्रीनशॉट पहले भी ले चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब फर्मेंटर जब आप लोग रन कर रहे होते हैं, रिमेंबर फर्मेंटर की रनिंग के दौरान में आपने उसको ऑटोमाइजेशन देनी है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आपके पास जो पीएच स्केल होता है या आपके पास टेम्परेचर मेंटेनेंस स्केल होता है, दे ऑल आर लिंक्ड विद द कंप्यूटर। जैसे कोई फ्लक्चुएशन आती है टेम्परेचर में, पीएच में, तो आपका कंप्यूटर आपको इंडिकेट कर देता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीजें सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको कैसे ऑर्गेनिज्म चाहिए, आपको किस तरह का बैक्टीरिया चाहिए फर्मेंटर में ग्रो करवाने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म आपने चूज करने हैं जिनकी ग्रोथ बड़ी रैपिड हो। ठीक है, और जिनकी ग्रोथ के लिए आपको चीप या रीजनेबल प्राइस में कल्चर मीडियम अवेलेबल हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म आपने चूज करने हैं जो पैथोजन ना हो, डिजीज कॉजिंग ना हो, टॉक्सिन प्रोड्यूस ना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने वैसे ऑर्गेनिजम्स को चूज करना है। ओके जी, चलें यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है 26 नंबर, आपके अक्सर पेपर में 26 नंबर पे आ जाता है, जाया करता है क्वेश्चन। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस पेनिसिलियम, द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड आर, ये आपको सारी स्टेजेस दी गई हैं। कॉर्न एंड यीस्ट इज एडेड टू फंगस, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड, पेनिसिलिन इज सिक्रेटेड बाय द फंगस, द प्रोडक्ट इज फिल्टर्ड। अब इनको आपने सीक्वेंस में कर देना है। जी जनाब, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉर्न और यीस्ट लेनी है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, पेनिसिलिन सिक्रीट करेगी, फंगस सिक्रीट कर देगी, फिर आपने उसको एक्सट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, सॉरी, आपने फिर उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद एक्सट्रैक्शन होगी। ठीक है, पहला नंबर पे आपने कॉर्न एंड यीस्ट को ऐड किया, फिर आपने उस ड्यूरेशन में डेफिनेटली उसको फूड मिला, तो पेनिसिलियम जो है वो सिक्रीट करेगी फंगस, फंगस को आपने फिल्टर कर लेना है, पेनिसिलिन को भी फिल्टर कर लेना है, और आपने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। सो ऑप्शन इज ए, दैट इज राइट ऑप्शन। ओके,
चलिए जी, फर्मेंटर हमें दूसरे किस फंक्शन के लिए यूज होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक हो गया। अब सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए आपने फंगस फ्यूसेरियम यूज करनी है। आपने यूज करनी है फंगस फ्यूसेरियम। ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। इसकी पीएच 6 है, टेम्परेचर 30 है। अब यहां पर आपने जब सिंगल सेल प्रोटीन है, रिमेंबर बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन को सिंगल सेल प्रोटीन इसलिए कहते हैं बिकॉज फंगस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दैट इज प्रोड्यूसिंग द काइंड ऑफ प्रोटीन, तो दैट इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई द नेम सिंगल सेल प्रोटीन इज गिवन टू इट। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो फर्मेंटर की वर्किंग में एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो ये है कि आपने फर्मेंटर के अंदर जो रोटेटर इंपेलर या आपके पास पैडल थे, आपने उनको मूव नहीं करवाना। अगर आपने स्टीयरिंग करवा दी तो फंगस के हाइफी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ड्यू टू विच द प्रोटीन टेक्सचर विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। आपका प्रोटीन टेक्सचर नहीं आएगा, आपके जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो उसका प्रोटीन टेक्सचर नहीं आएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने बाद में जैसे ही आपके पास ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो आपने फंगस को फिल्टर करना है, उसको ड्राई करके प्रोसेस कर लेना है। और एज कंपेयर टू द पेनिसिलिन प्रोडक्शन, ये हम प्रोड्यूस करवाते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन में। अभी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन का डिफरेंस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताने वाली हूँ। ठीक है। अब सिंगल सेल प्रोटीन, क्या फायदा है इसका बेटा? दैट इज रिच इन प्रोटीन, that is rich in fiber, but that is having low fat content as compared to the normal meat या normal protein जो meat से आपको मिल रहा होता है उसके मुकाबले में। So that is a good source that is helping you to prevent the constipation, coronary heart disease नहीं करवाएगी क्योंकि इसका फैट कंटेंट कम है। ठीक है, जबकि आपके पास जो नॉर्मल मीट आपके पास अवेलेबल होता है मार्केट में एनिमल सोर्स से, तो उसमें फैट कंटेंट ज्यादा है और उसके अंदर फाइबर तो होता ही नहीं है। ठीक है, सो ये भी अक्सर एक पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है, तो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड दैट इज फाइनल नाउ। ओके जी, नेक्स्ट अब आपको मैं फर्मेंटर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाते होते हैं, वो देख लेते हैं और उनका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज करता है, तो अल्टीमेटली दे आर यूजिंग अप द फूड, बिकॉज उन्होंने रेस्पायर करना है, ग्रो करना है, तो फूड यूज करेंगे। फूड यूज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल अल्टीमेटली एरोबिकली रेस्पायर करें तो वो कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगी। और अल्टीमेटली जैसे अगर वेस्ट आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव ना की, ठीक है, या टेम्परेचर आपने चेंज ना किया, सेट ना किया, तो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आपने क्या करना है, ऑक्सीजन स्टीराइल एयर आपने डालते जाना है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिले, रेस्पायर कर सके एरोबिकली। आपने क्या करते जाना है, आपने कूलिंग जैकेट यूज करनी है, ठीक है जी, ताकि आपके पास वहां से बेस से पानी कूल वाटर इन हो और ऊपर की साइड से आउट हो जाए, दैट इज टेकिंग द हीट अवे फ्रॉम द फर्मेंटर। ठीक है, आपने सेंसर्स और मॉनिटर्स का बड़े ध्यान से ख्याल रखना है। ठीक है, आपने उसकी स्टीयरिंग करते जाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने इस सारे प्रोसेस में अगर पेनिसिलिन बना रहे हैं तो स्टीयरिंग करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट गोइंग टू स्टिक एट अ पर्टिकुलर रीजन और वहीं पे ग्रो किए जाए। पूरा आपका जो न्यूट्रिएंट है वो आपके पास एयर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्मूथली मिक्स हो जाए। ठीक है जी, ओके, हाँ जी, अब बढ़ते हैं जी बैच प्रोडक्शन और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन की तरफ। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमने इसमें क्लोज फर्मेंटर यूज करना है और कॉन्टिन्यूस में ओपन फर्मेंटर यूज करना है। नाउ व्हाट इज क्लोज फर्मेंटर, व्हाट इज ओपन फर्मेंटर? बेटा, क्लोज फर्मेंटर वो होता है कि मैंने एक ही दफा न्यूट्रिएंट डाल दिया, एक ही दफा कल्चर डाल दिया और एक ही दफा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया और उसको एक टाइम पीरियड के लिए बंद कर दिया फर्मेंटर को। फिर उसको मैंने सिर्फ चेक करना है पीएच और टेम्परेचर वगैरह के लिए। ठीक है, और जब उसमें सारा फूड यूज हो जाएगा और प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, फिर मैंने उसमें से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करवा लेना है, दैट इज क्लोज फर्मेंटर। कि मैंने सब कुछ एक ही साथ डाल दिया और उसको
रख दिया फाइनल होने के लिए, उसको फर्मेंटर को मैंने ऑन कर दिया, और जब प्रोडक्ट बन गया तो मैंने उसको बंद करके फर्मेंटर में को ऑफ किया और अपना प्रोडक्ट निकाल लिया। जबकि कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटर में, ओपन फर्मेंटर में क्या होता है बेटे, मैं साथ साथ न्यूट्रिएंट डालती जाती हूँ। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डालना इसमें, आपने न्यूट्रिएंट डालना है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ग्रो कर रहा है, वो तो ऑलरेडी वहां पे होगा। अब वो यूज कर रहा है फूड, फूड खत्म होता जा रहा है, आपने फूड ऐड करते जाने। ठीक है, फूड ऐड करते जाएंगे और उधर से प्रोडक्ट निकालते जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज एन ओपन फर्मेंटर और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन इसको कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी है कि न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एडेड एंड लेफ्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि इसमें आपने स्टीडी रेट के साथ साथ थ्रू आउट निकालते रहना है। ठीक है, आपने इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करनी होती, प्रोडक्ट आपने एंड पे निकालना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक तो पहले इनका डिफरेंस की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन को सेट करना इजी होता है, उसे कैरी आउट करना इजी होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिलेटिवली इजी टू कंट्रोल। ठीक है, फर्ज करें अगर कि बाहर बहुत शिद्दत का तूफान आया तो मैं अपना प्रोसेस जो है वो, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स आने वाले हैं या मेरे फर्मेंटर को डैमेज होने का चांस है, इलेक्ट्रिसिटी जाने का चांस है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना फर्मेंटर उस टाइम पे रन ही नहीं करूंगी, मैं प्री प्लानिंग कर लूंगी। ठीक है, वेदर फोरकास्ट आप चेक कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपने ईच बैच कैन बी चेक्ड एंड आइडेंटिफाइड, आपका हर बैच चेक होगा कि प्रॉपर इसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, आप उसको इजी चेक हो जाता है। ठीक है, और आपके पास अगर कल्चर कंटेमिनेट हो जाता है तो उस कंटेमिनेटेड बैच को आइडेंटिफाई करना इजी होता है और उसको वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि आपके, और इस तरह से आपका एक ही बैच जो होता है वो कंटेमिनेट हुआ, वो आइडेंटिफाई होकर लॉस कम होता है इसमें, एज कंपेयर टू द कॉन्टिन्यूस। अब सेम फर्मेंटर को मैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज कर सकती हूँ। कभी मैंने पेनिसिलिन बना ली, कभी मैंने एससीपी बना ली, सिंगल सेल प्रोटीन, कभी मैंने इंसुलिन बना ली। ठीक है, अब जब कॉन्टिन्यूस के साथ आप इसे कंपेयर करें, अब यहां पर चूंकि मैंने हर दफा नया सिस्टम मैंने रन करना है, तो ये बैच प्रोडक्शन के लिए, तो मुझे उसमें मटेरियल हर दफा मुझे ज्यादा डिफरेंट चाहिए होगा। जबकि एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री जो होती है वो बेहतर कंट्रोल हो जाती है, मैं एक ही दफा स्टॉक अपने पास लेकर वो साथ साथ एडअप करती जाती हूँ। लेबर इसमें कॉस्ट जो है ड्यू टू कंप्यूटर ऑटोमेशन वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं साथ साथ। लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोडक्शन होता है विदाउट स्टॉपिंग और आपको उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता। बैच प्रोडक्शन में क्या हुआ, एक बैच निकाला, फर्मेंटर को स्टीराइल किया, उसको अच्छी तरह साफ किया, क्लीन किया, अनप्रोडक्टिव टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है बेसिकली। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, लॉन्ग रन का प्रोसेस है, होता रहता है, चलता रहता है, और इसमें लेबर कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आपके आपने तभी स्टॉप करना है जब ये आपको रिक्वायर होगा। ठीक है, और एक ही दफा इसमें आपने फिर जो है वो उसकी क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। अच्छा जी, अब ये सारे प्रोसेसेस इसकी वजह से इसकी कॉस्ट कम होती है, जबकि बैच प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। वॉशिंग और स्टीरिलाइजेशन रिक्वायर नहीं होती फ्रीक्वेंट, लेस वेस्ट होता है इसके अंदर, जेनेटिक स्टेबिलिटी रहती है कि एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, जबकि आप यहाँ पे बैचेस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्ट्रेन ले रहे होते हैं, लेस एनर्जी यूज होती है। अब डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। बैच प्रोडक्ट्स यूजुअली कॉस्टली होते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंट क्लीनिंग हो रही है। ठीक है, और अनप्रोडक्टिव टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है क्लीनिंग में, आपने हर बैच में। अब इसको, अब जो कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन है इसका डिसएडवांटेज, इसको डिफिकल्ट है बेटा मॉनिटर करना, कि इतने लॉन्ग रन में आपने उसको चला दिया है, आप उसको बार बार जाके मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अब कहीं पे कंटेमिनेशन तो नहीं हुई, कहीं पे ये प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, वो दिस एंड दैट। तो अब इसमें अगर खुदा ना खास्ता कंटेमिनेशन हो जाए तो आपको नहीं पता होता कि किस स्टेज पे कंटेमिनेशन हुई है, यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई द स्टेज एट विच द कंटेमिनेशन हैज हैपेंड। सो आपके पास, यू हैव टू वेस्ट होल द प्रोडक्ट, ए टू जी आपको सारा प्रोडक्ट वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई द स्टेज एट विच द कंटेमिनेशन हैज हैपेंड। ठीक है, और सम टाइम अगर आपके पास एनवायरमेंटल फैक्टर सुटेबल नहीं है, टू मच हाई टेम्परेचर हो गया है, आपके पास स्नो पड़ रही है, तो आप उसको रन करना प्रॉब्लम हो जाती है।
एंड अल्टीमेटली यू पीपल आर एडिंग इन द बैक्टीरियाज, सॉरी, आप लोग फूड डाल रहे हैं साथ साथ इनलेट पाइप के थ्रू, तो क्या होता है कि अक्सर बैक्टीरिया वहां पे भी ग्रो कर जाते हैं और पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कि जहां से आप फूड इनलेट पाइप है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, एक क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर इज द पेनिसिलिन प्रोड्यूस्ड? बहुत इजी है, आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना है। पेनिसिलिन मैंने अभी बताया था, आप कौन प्रोड्यूस करता है, किसके अगेंस्ट यूज होती है। ठीक है जी। नाउ कमिंग टूवर्ड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फर्मेंटर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन। मैंने आपको पूरा प्रोसेस पहले मैं बता चुकी हूँ फर्मेंटर की वर्किंग का। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू पीपल कि मैंने इस इंसुलिन के लिए अपने ऑर्गेनिज्म को पहले प्रोड्यूस कैसे करना है, मैंने बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ह्यूमन पैंक्रियाज से क्रोमोसोम लिया, दैट क्रोमोसोम इज हैविंग द जीन फॉर द इंसुलिन प्रोडक्शन। आई एम गोइंग टू सेपरेट आउट द जीन, and then I am also taking the plasmid from the bacteria that is having less number of genes on it, that is bacterial plasmid। उसको भी मैंने कट किया, उसके अंदर मैंने अपनी रिक्वायर्ड इंसुलिन की जीन ऐड की और उसको मैंने एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करके फर्मेंटर में उसको डाल दिया, फर्मेंटर में उसने रिप्रोड्यूस किया और एंड में मैंने इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर ली। डिटेल प्रोसेस चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है आपने प्लाज्मिड को और टारगेट जीन को क्रोमोसोम से कट करने के लिए। आपने यूज करना है डीएनए लाइगेज इन दो अपने ट्रीटेड जो आपने किया है प्लाज्मिड और टारगेट जीन को ज्वाइन करने के लिए आपने डीएनए लाइगेज यूज करना है। आपने इंसर्ट कर देना है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इकोलाई में। इकोलाई इज अ बैक्टीरिया। इसमें आपने इसको हीट शॉक दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया या केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू आपने इसमें ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऐड कर दिया। अब ऐसा बैक्टीरिया इकोलाई जिसके अंदर मैंने अपनी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ऐड किया, दैट इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि साथ में इसका अपना जीन्स भी होंगे, ठीक है, बट उसमें मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी डाल दिया है। आफ्टर मैंने दैट आई एम गोइंग टू इंसर्ट इट इनटू द फर्मेंटर, वहां पर वो रिप्रोड्यूस करेगा और इंसुलिन विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड प्योरिफाइड। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इन द कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलिन ह्यूमन जीन इज इंसर्टेड इनटू विच ऑफ दीज, किसके अंदर डालनी है? दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिएगा। आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू द दिस क्वेश्चन नंबर 37। बेटा डोंट माइंड, ये मैंने आपके पेपर से स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए आपको ग्रीन कलर की लाइंस नजर आ रही होंगी। अच्छा, बैक्टीरिया कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय एडिंग अ ह्यूमन इंसुलिन जीन टू द बैक्टीरियल डीएनए। एन एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसीजर इज दैट बैक्टीरिया डू नॉट नीड अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज। भाई अगर ग्लूकोज नहीं रिक्वायर्ड, देन हाउ दे आर गोइंग टू रेस्पायर, हाउ दे आर गोइंग टू गेट द एनर्जी टू रिप्रोड्यूस? ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बैक्टीरिया ग्रो फास्टर देन बिफोर बीइंग जेनेटिक इंजीनियर्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे आप उसको, तभी उसने उसको ग्रो करवाना है आपने। ठीक है, द इंसुलिन डज नॉट नीड टू बी प्योरिफाइड बिफोर इंजेक्टिंग इनटू द पेशेंट। ऐसा नहीं होता बेटा, आपने इंसुलिन के साथ बैक्टीरिया भी आ जाएगा अदरवाइज अगर आपने उसको प्योरीफाई ना करवाया तो। द इंसुलिन इज अनलाइकली टू कॉज इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट। दैट डी ऑप्शन इज राइट। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जब मैंने इंसुलिन यूज की है, उसने ऊपर आपको बैकग्राउंड बता दिया कि आपने ह्यूमन इंसुलिन जीन यूज की है, तो एज दैट इज जीन फ्रॉम द ह्यूमन, सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट कॉजिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज वो जीन ही ह्यूमन की ली गई है। तो सिर्फ मैंने बैक्टीरिया को एज ए वेक्टर यूज किया है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को, कि वो मेरे पास प्रोड्यूस करवा दे इंसुलिन। सो डी ऑप्शन इज राइट कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स इन द इंजेक्टेड पर्सन। ओके, आई होप दैट यू have liked my video। आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। I have done a lot of effort on it। Please give me thumbs up and please do comment appreciation। I need a lot of appreciation। Okay, एक टिपिकल जिस तरह से सब लोग कहते हैं कि प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, वो जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।